Good afternoon, dear student. This is for class 6, and we are going through the chapter number 2 of your geography portion. Your topic, chapter name is globe, latitudes and longitudes. And in the last class, I have discussed about these terms. Let me revise about these three terms. Globe is actually a small model of the earth. Model means copy of something which is normally smaller than the real one. Since globe is a small model of the earth, so it resembles such as globe is mounted on an axis and it rotates on its axis in the same way as our earth. Latitudes are the horizontal line and it runs in east-west direction, and there are 90 latitudes in each hemisphere, that is northern and southern hemisphere. 0 degree latitude is called equator and they are parallel to each other. And length of the latitudes decrease as we move toward the pole. और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड का जो लेंथ होता है धीरे धीरे घटता जाता है. एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइन्स एंड इट विच रन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इट्स नंबर्स आर 360. 0 degree longitude is called Greenwich. It is also known by the other name, that is prime meridian. They are not parallel. One thing more about the meridian or longitude is that longitudes are of same length. Longitude क्या होते हैं? सभी longitude आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन latitude नहीं होते हैं आपस में इक्वल. The big needle fixed through the globe is the imaginary axis on which the earth rotates. और जो बड़ी सुई होती है ग्लोब में क्या है? इमेजिनरी एक्सिस होती है. तो यहाँ एक नया टर्म आया एक्सिस. तो एक्सिस होता क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होता है एंड अराउंड विच आवर अर्थ rotates, and there are two ends of this axis named as North Pole and South Pole. The upper part of the axis is called North Pole and its bottom part is called South Pole. Globe has lines drawn its surface which form a criss-cross pattern called grid. And globe has lines. Lines means latitudes and longitudes form a special pattern that is called grid. एक ऐसा पैटर्न बनाता है. क्रिस क्रॉस means these straight lines cross one another and that pattern is called criss cross. क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे सीधी लाइन एक दूसरे पे क्या क्रॉस करता हो तो क्रिस क्रॉस बोला जाता है, और इसी पैटर्न को ग्रिड बोला जाता है. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड्स. सो आप लोग नोट कर सकते हैं ग्रिड का डिफिनेशन. द नेटवर्क ऑफ latitudes and longitudes
और कॉल्ड ग्रिड। और दीज लाइन्स जो क्या होते हैं, कट करते हैं एट द डिग्री ऑफ 90। द ईस्ट वेस्ट लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स and the north south lines are called meridians of longitude. The line which divide globe into two equal halves is known as equator। और जो इक्वेटर होता है जो कि पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है नाम उसका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज कंपोज ऑफ टू वर्ड, हेमी प्लस स्पेयर। हेमी मीन्स हाफ, तो यहाँ हेमी स्पेयर का कहने का मतलब हो गया हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ। और इक्वेटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है जो कि नंबर्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। लेट मी अंडरस्टैंड यू, sorry, let me make you understand via figure. This is the equator. I am not good in drawing, so I have to take help from the book figure given in the book. आप लोग को ड्राइंग सीखना है। मैं अपने स्कूल टाइम में आई यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स, और आप इसका नतीजा देख सकते हैं। आज ड्राइंग आता तो आज हम करते। तो ये इक्वेटर है, तो ये जो सेंटर हो जाता है, सेंटर बस उसी तरह से समझना है जो आप मैथमेटिक्स क्लासेस में सर्कल में पढ़े होंगे। ये सेंटर है, तो इससे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या कहा जाता है, इस सारा एरिया को। और इससे नीचे वाला पार्ट को क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वालों को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वालों को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग कह सकते हैं द एरिया नॉर्थ to the equator is called northern hemisphere and south is called southern hemisphere. "90 latitudes in the southern hemisphere are termed as southern latitudes." और 90 लैटिट्यूड जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है और 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। दीज आर इंडिकेटेड विद द लेटर एन एंड एस रेस्पेक्टिवली। और इसको इंडिकेट किया जाता है एन और एस के जरिए। जैसे लंदन इज 51 डिग्री एन while Sydney is 33 डिग्री एस। तो हेयर एस एंड एन मीन्स साउथ एंड नॉर्थ। द साइज ऑफ दिस पैरेलल्स डिक्रीज एज वी मूव पोलवर्ड्स, मीन्स एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल द साइज और द लेंथ ऑफ दिस पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग। जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं तो लैटिट्यूड्स का जो लेंथ या फिर साइज क्या है घटता जाता है, और पोल पे इतना छोटा हो जाता है तो डॉट से भी छोटा, जस्ट इमेजिन कीजिए, डॉट से भी छोटा, इवन स्मॉलर देन द डॉट। Below there are some important latitudes। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोला जाता है, 63 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ को
आर्टिकल शैल की बोला जाता है। तो पुट इट एज योर होमवर्क, ड्रा अ फिगर इन विच यू हैव टू शो दीज इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, आपको करनी है और आपको खुद से करनी है, मेरे जैसे दोस्तों से हेल्प नहीं लेनी है और जैसे चूड़ी वाला ये सब से नहीं, खुद से करनी है। डू नॉट टेक हेल्प सच ऑब्जेक्ट्स। और ड्राइंग करने के बाद आपको ग्रुप में सेंड कर देना है। Once again, I am reminding those students who are not doing homework. I am making remarks for those students and sending. I have also sent to the school management. Thanks. That's all for today.